कोई नहीं है। अब्बास शाह ने खड़ा चुका है, अली अकबर सीने पर बच्ची का बाल खा चुका है। अरे भैया आगे आओ, ये ज़ैनब तुम्हें सवार करेगी। ज़ैनब ने सवार किया। अरे भैया जाओ, खुदा हाफिज। उधर से हुसैन कह रहे थे, क्या कह रहे थे? अरे ज़ैनब, इसके बाद इम्तिहान की मंजिलें तुम्हारे सवाले हैं, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ज़ैनब कुबरा की इम्तिहान की मंजिल सुनिए। शाम गरीबा, टूटा हुआ नेज़ा लिए हुए ज़ैनब कुबरा अरे खैमों की निगहबानी पासबानी कर रही है, कोई ना आए, मेरे बच्चे 3 दिन के भूखे प्यासे सो गए हैं। ज़ैनब कुबरा टूटा हुआ नेज़ा लिए हुए निगहबानी हिफाजत कर रही है जले हुए खैमों की। एक दफा दूर से देखती है, क्या देखती है? एक सवार चला आ रहा है। एक दफा अली की गैरतदार बेटी है, शुजाअत में आवाज देती है, सवार रुक जा, आगे ना बढ़, मेरे बच्चे 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। अरे अभी सो गए हैं, गशी के आलम में सोए हैं, बेहोश हो गए हैं, ना इनके खलीफा। लेकिन वो सवार आगे बढ़ता चला आ रहा है। एक दफा अली की बेटी आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद अरे असबे पर लजा में फरज पर हाथ डाल दिए और कहा, है सवार, मैं तुझसे ये कहती हूँ कि ठहर जा, मेरे बच्चे अभी अभी सोए हैं, दोबारा इनको न बताओ। अब इतनी हिम्मत नहीं है, अब इतनी दवाई नहीं है कि कोई तमाशा मारे, कोई दूर से मारे, कोई ताजियाने मारे। अरे रहम करके मेरे बच्चों पर। लेकिन वो सवार रुक गया। अरे जब ज़ैनब अपने बहनों से ने अपने चेहरे से नकाब को हटा और नकाब को रखने के बाद ज़ैनब, अरे तुम्हें पहचाना नहीं? अरे कोई और नहीं, तेरा बाबा ये मुर्तज़ा है। अरे उसे बर्दाश्त ना होगा कि मेरी लाडली बेटी तरह इस करबल के मैदान है। अरे करबल के मैदान है, बच्चों की मदद है। अरे ज़ैनब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। अरे तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा बाबा भी है। अरे ज़ैनब सिर्फ एक फरियाद थी, बाबा उस वक्त आ गए जब भैया के सिर दर्द जैसे बाबा उस वक्त कहाँ गए जब हमारी चादरें छीनी जा रही थी। बाबा उस वक्त कहाँ गए जब पहले जाए जा रहे थे। अरे सिर्फ इतना समझा रहे हैं, मेरी सब्र कर, ये मंजिल इम्तिहान मसाइब है। वाह हुसैना, वाह मज़लूमा। Zainab Babo
اللهم انصر كل أولياء، اللهم اصلح كل مهين، اللهم فرج كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل خاسر من أمور المسلمين، اللهم اشف كل غريب، اللهم صد فقرنا بغناك، اللهم غير السوء وحالنا بحسن حالك، اللهم اغفر عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحوم مومنین و مومنات کی آواز کو پڑھ کر رسالہ سماعت فرمائیں. بسم اللہ رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. And brothers para o salvat, molis aksel zikir es karan muhtelif elmanız, tahmaz guardi karas guzarish, ki yus ya field asman şu skil tahmaz mehna, مگر یہ تھو خیال کہ تعلیم مروجہ کوشش کریں قرآن پرنچ علوم اہل بیت سمجھنچ تو تر پہ عمل کرنچ قرآن پرنس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، میں روز ہی اس آیت کو پڑھ رہا ہوں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم تمام مومنین کو صاحبان ایمان کو متوجہ کر کے کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں صرف لفظی مسلمان دیکھنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم تمہیں فکری طور سے مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ایسے مسلمان چاہتے ہیں جن کا دل و دماغ مسلمان ہو گیا ہو. ہم صرف نام کے مسلمان نہیں چاہتے بلکہ ایسے مسلمانوں کو چاہتے ہیں جن کا دل و دماغ، جن کی سوچ، جن کی فکر، جن کا خیال، جو کچھ ہے وہ سب مسلمان ہیں. اور اسی لیے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد انسان کو اکیلا یا تنہا نہیں چھوڑ دیا بلکہ انسان کے لیے کیا کہا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو تو تمہاری ہدایت کی، تمہاری رہبری کی، تمہارے گائیڈنس کی تمہیں ضرورت ہوگی تو ہم اس کا بھی تمہارے لیے ہم ایک سلسلہ رکھتے ہیں جسے نبوت کا سلسلہ کہا جاتا ہے. اور یہ انسان جب دنیا میں آیا تو اس کے لیے قرآن مجید نے صاف صاف یہ کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تم سب انسانوں کو جو پیدا کیا تو اس طریقے سے پیدا کیا لا تعلمون شیئا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں اس طریقے سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. اور اس کے بعد قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے تھے. یعنی حضرت انسان کی جو پوری زندگی ہوئی وہ یہ کہ پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے تھے اور اللہ کیا کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. ابھی تو جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ اور عمل. دیکھیے دو لفظ ہیں جس سے آج بات میں شروع کرنا چاہتا ہوں. اردو کی مشہور اور معروف مشہور لفظ ہیں دو. ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے ماننا. ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے ماننا. جاننا دنیا میں انسان جانتا ہے کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے جانتا ہے. کوئی بھی چیز جاننا ہے تو اس کو علم کے ذریعے سے
कुछ जानना है, फला चीज के बारे में कुछ हमको इल्म हासिल करना है, कुछ उसके बारे में मारिफत हासिल करना है, कुछ उसके बारे में सीखना है, तो हम जाकर लाइब्रेरी से, कुतुबखाने से, दारुल कुतुब से किताब उस मौजू में लेते हैं, उसके बारे में जान जाते हैं। हम जान गए कि हमारे लिए ये चीज दुनिया में मिसाल के तौर पर फायदेमंद है या ये चीज दुनिया में हमारे लिए नुकसानदेह है। हम जान गए, तो क्या यह जानना हमको निजात दे देगा? अगर हम ये सिर्फ जान लें कि जो सर्दी होती है वो हमें नुकसानदेह है, तो ये क्या जानना ये हमें निजात दे देगा? नहीं, सिर्फ जानना नहीं बल्कि उसके साथ साथ जानकर उसको मानना भी जरूरी हुआ करता है। और जब ये अकीदे की बात आती है तो हमसे जो सबसे बड़ी गलती होती है ये कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन मानने में हम कमजोर नजर आते हैं। जानता तो देखिए कि जानते तो हम सब कुछ है, हमको सब कुछ बता दिया गया, हम जान गए। हम एक शैतान था, इब्लीस था, वो भी जानता था। देखिए जानना और होता है। इब्लीस भी जानता था कि खुदा इस दुनिया का पैदा करने वाला है, इस दुनिया को उसने पैदा किया है। इब्लीस जानता था, शैतान जानता था। जो आसमान पे झगड़ा हो रहा है, आदम का सजदा हम नहीं करेंगे, हम आदम का सजदा नहीं करेंगे, जानता था कि इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक ये है, इसका हुक्म ये हुक्म दे रहा है। जान रहा था लेकिन मान नहीं रहा था। तो क्या मतलब हुआ कि सिर्फ जानना काफी नहीं होता है बल्कि मानना भी जरूरी हुआ करता है। जानने का नाम इल्म हुआ करता है, मानने का नाम अकीदा और ईमान हुआ करता है। तो अजीजों ये ना सोचिएगा मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों कि सिर्फ हम किसी चीज को जान ले तो ये हमें नजात दे देगा, नहीं, बल्कि उसको जो जाना है उसको हम दिल की गहराइयों से माने। अव्वलुद्दीन मारिफा, क्या नजुल्लाह का पहला खुतबा जो मारिफत के सिलसिले में है उसमें क्या कहते हैं हमारे आपके पहले इमाम कि दीन की जो इब्तिदा है, शुरुआत है किससे? मारिफत से है, अल्लाह को जानने से है। लेकिन सिर्फ जानने से नहीं, फिर उसके बाद आगे आगे उसकी तस्रीह मौला कहना करते हैं। तो ये जानना सिर्फ काफी नहीं होता बल्कि मानना काफी होता। अब ये दो लफ्ज हो गए, जानना और मानना। अब आइए दो एक चीज है जिसका मौजूद चल रहा है, क्या? अकीदा। एक हम कहते हैं कि हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा ये है कि हम जब दुआ कुमैल पढ़ते हैं तो हमारी वो मुसीबत जो है दूर हो जाती है। अकीदा हमारा अकीदा ये है। एक चीज होती है अकीदत। अकीदा समझ गए हम? एक हम लोग कहते हैं कि एक अकीदा है हमारा ये, और एक चीज है हमारी अकीदत। अकीदा क्या होता है और अकीदत क्या होती है? हमारी अकीदत जनाब अब्बास से इस तरीके की है, हमारी अकीदत इमाम हुसैन से ऐसी है, और हमारी अकीदत मिसाल के तौर पर शहीदान करबला से ऐसी है। हम अइम्मा अठार से अकीदत इस तरीके से रखते हैं। तो यानी ये अकीदत जो होती है वो अकीदे की वजह से आया करती है। जब तक अकीदा नहीं होगा तब तक अकीदत नहीं आएगी, है ना? जब तक अकीदा नहीं है तब तक अकीदत नहीं आएगी। अब हम देखें अपने को कि हमारे यहाँ अकीदत ज्यादा पाई जाती है या अकीदा ज्यादा पाया जाता है? जरा इस पर आप देखिएगा कि हमारे यहाँ अकीदत ज्यादा है या अकीदा ज्यादा पाया जाता है। अगर अकीदा मजबूत है तो अकीदत अपने आप बढ़ती चली जाएगी। हम सब क्या कहते हैं? हमारी अकीदा है, हमारा अकीदा यह है कि जनाब अब्बास कुछ बर्दाश्त नहीं करते हैं, है ना? जनाब अब्बास के मामले में जब आते हैं हमारा अकीदा उसे इतनी होती है कि हम जनाब अब्बास के लिए कहते हैं कि जनाब अब्बास किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करते हैं। यानी क्या नहीं बर्दाश्त करते हैं? जरा मैं लफ्ज की थोड़ी कर दूं, ऐसा ना हो कि शहरों में बात उलझ जाए। क्या बर्दाश्त नहीं करते? हमारे कहा जाता है कि देखो खुदा की बारगाह में तो गलती कर लो लेकिन खबरदार छोटे हजरत इनको कहा जाता है जनाब अब्बास को कि इनकी बारगाह में वो न करना, बहुत गुस्सा है इनको। ये शेर खुदा के बेटे हैं। ये है अकीदत, जिसे कहते हैं अंधी अकीदत। ये है अकीदत कि खुदा के बारगाह में तुम सुबह और शाम गुनाह करते रहो, उससे तो आमना सामना कयामत में महशर के मैदान में होगा। लेकिन खबरदार इमाम बड़े हैं, ऐसी हरकत जनाब अब्बास बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये अगर है कि जनाब अब्बास चूंकि शेर खुदा के फर्जंद हैं, जनाब अब्बास के लिए हमने तसव्वुर क्या बना रखा है? हमारा अकीदत क्या? देखिए अकीदा कहाँ से बिगड़ता है और अकीदत कहाँ पर जाकर हमको पहुंचा देती है। जनाब अब्बास के लिए हमारे लिए सिर्फ जो बातें हैं वो ये कि जनाब अब्बास एक इंसान है जो अपना जोश में रहता है, जज्बात में रहता है, और एक तलवार है उसकी, है ना? और आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो नारा लिखा जाता है नौजवानों में जोश दिलाने के लिए, क्या लापता इल्ला अली
ایک تلوار بنا دی، دو علی لاپتہ الا علی. ارے عزیزوں، ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں علی بالکل لاپتہ تھے. علی واقعاً جذبات والے انسان تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، لیکن یہ ساری چیزوں کے بعد کہ علی شجاع تھے، مرد میدان تھے، بہادر تھے، لاپتہ ان کے اوپر نازل ہوا یا یہ ذوالفقار ان کے اوپر نازل ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علی عابد شب زندہ دار بھی تھے. علی عبادت بھی کرتے تھے. ایک ایک رات میں ہزار ہزار تکبیروں کی صدائیں علی کے گھر سے آیا کرتی تھی. تو ہمارے عقیدت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ عقیدت نہ بگڑنے کا. جناب عباس کے لیے ہم نے سوچ لی جناب عباس کچھ کر لو، لیکن ان کے لیے چھوٹے حضرت کو نہیں. اور آج بھی ابھی تک ایسے ہی تصور پایا جاتا ہے. اللہ کی 2 رکعت نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، لیکن اگر جناب عباس کا علم نکل رہا ہے یا جلوس نکل رہا ہے یا مجلس ہو رہی ہے تو اس میں نہیں جائیں گے تو ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ عذاب. ارے جناب عباس اسی لیے پیدا ہوئے تھے کہ وہ بھی چاہنے والوں کو اوپر خدا نخواستہ عذاب نازل کریں. ارے یہ تو وہ ہستیاں تھیں جو دشمنوں کو یہ سیراب کیا کرتی تھی. یہ تو وہ ہستیاں تھیں کہ جو دشمنوں کے بچوں کے اوپر رحم کھایا کرتی تھی. یعنی جناب عباس کے لیے ہم نے اتنا سوچا یہ ہے عملی عقیدت. جب عقیدہ بگڑتا ہے، جب صحیح عقیدہ نہیں ہوتا ہے، تب عقیدت اس منزل پر آ جاتی ہے. جناب عباس یہ کریں گے. ارے جناب عباس نے وہاں بلا کیا کہ فلاں مجلس میں ایسا ایک انسان نے کر دیا تھا، جناب ایک تلوار بلند ہوئی، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ نے واقعہ سنے ہوں گے. یعنی کیا مطلب ہے کہ جناب عباس سے کل ہماری جو عقیدہ جناب عباس سے ہوتی ہے وہ بس اتنی سی ہے، لیکن جذبات دیکھیے جناب عباس کو سمجھنا ہو تو اس طریقے سے سمجھیے. چونکہ یہ مجلس کہاں ہو رہی ہے؟ ادارے. بات آ گئی تو سن لیجیے کہ جذبات کے معاملے میں جناب عباس کیسا انسان تھا. کیسا کیا سوچتے ہیں کہ جب عزاداری کی بات آتی ہے، جب کسی بھی دین کی بات آئے گی یا کسی بھی چیز کی بات آئے گی تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ برداشت نہیں ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فلاں چیز کی بات ہے. ہم اپنے یعنی اسے کہا جائے کہ اللہ کے حکم کو، دین کے حکم کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اور اپنی بات کو آگے رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آپ یا ہمارا جذبہ یا ہماری عقیدت یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کام ہونا چاہیے، چاہے دنیا یہ کہتی رہے کہ کام غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کہ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جیسے آج کل کے مشہور و معروف ایک چلا کرتا ہے کہ یہ چیز سمجھ نہیں آتی، عقیدت ہے، لیکن اس بیس پر انسان اس کو انجام دیتا ہے. اور کیا ہے کہ دیکھیے سب لوگ جو ہے زنجیر زنی کرتے ہیں. کہاں؟ پورے ہندوستان میں، پورے پاکستان آپ دیکھیں سی ڈی کے ذریعے سے کہاں. لیکن کوئی آگے اگر یہ بڑھائے گا نہیں بھائی اس کو ٹھیک ہے، اس خون بہائیے، لیکن اس کو ذرا صحیح طریقے سے کر لیجیے، صحیح طریقے سے ڈونیٹ کر دیجیے، ڈونیشن میں ڈال دیجیے تو کسی اس کے دوسرے کے کام آئے گا. تو دیکھیے عقیدت جہاں اندھی ہوتی ہے وہ انسان کو غلط راستے پر لے جایا کرتی ہے. عقیدت جہاں پر بگڑتی ہے وہ انسان کو غلط راستے پر لے جایا کرتی ہے. ہم جب عزاداری کی بات آتی ہے، مجلس کی بات آتی ہے، نماز یا مرثیے کی بات آتی ہے تو ہم جو ہے اللہ کی طرف یا جناب عباس کی طرف یا امام حسین کی طرف کم دیکھتے ہیں، اپنی عقیدت کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں کہ ہماری عقیدت کیسی ہے، ہمارا عقیدہ کیسا کہہ رہا ہے. یعنی ابھی ہم نے امام حسین کو سمجھا نہیں ہے کہ امام حسین کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، جناب عباس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں نے، ہمارے والدین نے جو عقیدت ہمارے دل و دماغ میں عباس کے لیے، حسین کے لیے بٹھائی ہے، یہ بات اس عقیدہ کے خلاف جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے. اگر خلاف نہیں جا رہی ہے تو ہم اس بات کو مان لیتے ہیں. تو عزیزوں جناب عباس اس ہستی کا نام تھا جو تمنا علی تھا. اور جذبات کے معاملے دیکھیے گا کہ عقیدت کیسی ہوتی ہے. جناب عباس کو اپنے حسین، اپنے بھائی سے عقیدت تھی کہ نہیں تھی؟ کون ہے جو کہے گا کہ نہیں تھی؟ ہر انسان کہے گا کہ جناب عباس کے دل میں حسین کی عقیدت پائی جاتی تھی اور بے انتہا عقیدت پائی جاتی تھی. آپ کو عقیدت رکھنا ہے تو عباس کی طرح عقیدت رکھیے، اور اگر چاہنا ہے اسی کے تو کس طریقے سے عباس کی طرح سے اس سے محبت کریے. دیکھیے عباس کی عقیدت کیسی ہے حسین کے بارے میں. یہ عباس وہ انسان کہ جو جسے کہا جائے کہ بہادر، شجاع، سب کچھ تھا، لیکن سب کچھ ہر سب چیزوں پر گڑبڑ کیے ہوئے ہیں. عقیدت دیکھیے کسے کہتے ہیں. امام حسین کہتے ہیں عباس تمہاری تلوار نیام میں رہنا چاہیے، نیام سے باہر نہ نکلے جب تک میں نہ کہہ دوں. اسے کہتے ہیں عقیدت. ایک دفعہ اگر کہہ دیا مولا اگر آپ کا آرڈر یا آپ کا حکم نہیں ہے جنگ پر نہیں جاؤں گا، تلوار نہیں نکالوں گا، اسے کہتے ہیں معرفت اور عقیدت. اسی کو کہتے ہیں کہ سامنے والے کو سمجھ لینا. اور سب کچھ ہوا، یعنی عباس نے تلوار نہیں نکالی جہاں تک کہ کہا جائے کہ دونوں ہاتھ کٹ گئے. عقیدت کا عالم دیکھیے کہ کیسی عقیدت ہے اپنے بھائی سے. یہ بس
सच्ची और हकीकी अकीदत, वो अकीदत नहीं जिसको हम अकीदत जिसको रखते हैं। नहीं, अब्बास यहां तक कि अपने दोनों हाथ रोके रहे और दोनों हाथ, तलवार नहीं निकाली और दोनों हाथ कट गए। अब सोचिए, जो सच्ची अकीदत रखने वाला था उसके दोनों हाथ कट गए, आज उसका रोजा करबला के मैदान में बना है, हाथ दोनों नहीं है लेकिन पूरी दुनिया को अता कर रहा है कटे हुए हाथ से। कटे हुए हाथ से कोई नहीं अदा करता है, जिसके हाथ होते हैं वही अदा करता है। बाबुल हवाइज वही इंसान हो सकता है जिसके दोनों हाथ हों। लेकिन सच्ची हकीकी अकीदत ऐसी थी अब्बास की कि अब्बास ने अगर कह दिया था इमाम हुसैन ने कि अपने हाथों को रोके रहना, तो फिर हाथ नहीं, हाथ में तलवार नहीं आई, उनके हाथ हो गए और हाथ कट गए। और हाथ कट जाने के बाद जब अकीदत ऐसी सच्ची होती है तो अल्लाह ने भी कहा, अब्बास तुम्हारी अकीदत का यह आलम था कि तुमने हुसैन के फरमान के आगे अपने सर को झुका दिया था, तो तुम्हें हम ऐसा एजाज और मौजज़ा अता करेंगे कि तुम्हारे हाथ तो कट जाएंगे लेकिन दुनिया को इन कटे हुए हाथों से तुम सैराब करते रहो। तो फिर क्या मतलब हुआ कि अकीदत जो होती है, हम अकीदा किसी के बारे में रख लेते हैं, अल्लाह के बारे में अकीदा है, नबी के बारे में अकीदा है, इमाम के बारे में अकीदा है, सब के बारे में अकीदा है। लेकिन अकीदा अजीजों जो होता है, अकीदा रखना बहुत आसान होता है, ना उसका कोई पैमाना होता है, ना उसकी कोई मशीन होती है कि हम आपके दिल पे लगाएं और सोचे कि आपके पास कितने अकीदे हैं, अकीदे कितने हैं। लेकिन आप कहते हैं हाँ हम तो 5 अकीदे मानते, बात खत्म हो गई। तो अकीदा तो बहुत आसान है कि अकीदे को हम मान लें यानी जान लें, लेकिन उस अकीदे को सही तरीके से मानकर और उस तरीके से उसके अकीदे पर अमल करना, यह बहुत मुश्किल काम है। और यही हमसे जो आज हम मुसलमानों का जिसे कहा जाए कि हम मुसलमान जो बिछड़ते चले जा रहे हैं या पीछे होते चले जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जितने अच्छे अकीदे या जितना मजबूत इस्लाम हमारे यहाँ रखा गया था, हम सिर्फ अकीदे को जानते रहे, मानने तक हम नहीं पहुंचे। हमसे यही गलती हुई कि हम सिर्फ जान लेते थे कि हमने जान लिया, बस हमने उसको माना नहीं। इसलिए कि जो मान लेता है, अब तो देखिए मिसालों में बात आती है कि कोई बच्चा हो कहे कि हम हाँ अपने वालिद साहब को हम जानते हैं, जान लिया आपको, आप हमारे वालिद हैं, मोहम्मद सफदर आपका नाम है, तो जान लेना काफी है? नहीं, जानना नहीं काफी है, बल्कि अगर पानी लाने का ऑर्डर दें कि मेरे लिए तुम पानी लेकर आओ, तरेश लेके आओ, तो क्या कहेंगे कि पानी तुम्हें लेके आना है। मतलब क्या है कि जान लेना सिर्फ काफी नहीं, कि बच्चा बाप को जान ले, ये काफी नहीं होता है। जब तक बच्चा बाप को माने नहीं, तब तक ये नहीं कहा जाता है कि इसने बाप को बाप तस्लीम किया है। तो यानी मतलब क्या है, दुनिया में कोई भाई को भाई जान ले, ये काफी नहीं है, बल्कि हुकूक जो भाई के हक हैं, जब तक वो अदा ना करे, जब तक उसको सही तरीके से अदा ना करे, यानी जान का जब तक माने नहीं दिल की गहराइयों से। देखिए नौकर भी हमारे घरों में होते हैं, अब नहीं होते लेकिन शहरों में देखिए नौकर भी होते हैं, एक भाई भी होता है। नौकर सब कुछ जानता है, लेकिन भाई जो होता है वो सब कुछ मानता है, इसलिए उसका खूनी रिश्ता होता है। नौकर आपके आर्डर का और आपके हुक्म का जो है इंतजार करता है, भाई आपकी आंखों में आके देखा करता है कि हमारे भाई को किस चीज की, नौकर इस चीज को देखा करता है कि बॉस को किस चीज के जब ये कहेंगे, क्यों? इसलिए कि वो जानता है इसको मानने से कोई मतलब नहीं, उसको तो पगार चाहिए, तनख्वाह चाहिए, सैलरी चाहिए। लेकिन जो भाई है जिसका खूनी रिश्ता है, वो ये देखा करता है कि भाई ने करवट ली तो शायद इसे प्यास लगी है, इसे गुजर हुई है। तो अकीदों हमारे यहाँ जो है कि हम लोग हर चीज जान लेते हैं, या ऐसा कहा जाए कि जो अकीदा है उसको हम समझ लेते हैं। और देखिए अकीदा तो है कि अकीदा समझ लिया, ये हमारे जो 5 मजलिसें हैं, ये 5 समझिए कि 5 उसूल दीन, 5 उसूल दीन, 5 मजलिसें या 5 वतन पाक, जो कुछ 5 जैसे आपको अब्बास से भी याद कराया जा रहा था, 10 बियात अरबा, 9 बियारबा, शहीद राबे, ये सब आपको याद कराया जा रहा था। तो वैसे ही है 5 मजलिसें, 5 दफा कह लीजिए या
शहीद राबे, ये सब आपको याद रहेगा। तो वैसे ये बात बंदी से पंजता कहिए या उसूल 5 हैं, उसको कह लीजिए, जिस तरीके से उसको याद रखिए। तो ये जानना और मानना। जब हम किसी चीज को, देखिए पहले से कुछ इंसान होते हैं जो पहले से तय कर लेते हैं कि हमें ये चीज मानना नहीं, पहले से तय कर लिया, पहले से तय कर लिया कि हमें ये चीज मानना नहीं है। आप उनको जितना भी समझाते रहिए, जब वो दिल में ये तय किए बैठे हमको मानना ही नहीं है, तो आप लाभ दलीलें देते रहिए उनको, उनको तय कर लिया है कि मानना नहीं है। जब मानना नहीं तो आप कुछ ऐसा समझाते रहिए। एक जगह बहस हो रही थी, एक साहब मुनाज़रे के लिए बहस करने जा रहे थे, तो उनसे दूसरे साहब ने पूछा कि बताओ क्या तुम्हारा क्या इरादा है, जीत जाओगे हार जाओगे, मतलब बहस में हार जाओगे या जीत जाओगे। उनका हम जीत जाएंगे बहस में, जो मुनाज़रा होने वाला है उसमें हम जीत जाएंगे, उनको हरा देंगे सामने वाले को। तो उनका कैसे, कितने यकीन के साथ क्यों कह रहे हो कि तुम ही जीत जाओगे? कहा जब वो जो कुछ कहेंगे वो सामने वाला, जो कुछ सामने वाला कहेगा उसको हम मानेंगे ही नहीं। जब हम मानेंगे ही नहीं तो हम जीत ही आएंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से तय करके आते हैं कि भाई उनको इस्तेमाल या तकलीफ को समझाना, और पहले तय कर लिया है कि हमें इसको चीज को मानना नहीं है, विलायत हमको मानना ही नहीं है, तुम्हारा खूब से ज़कात हमको मानना ही नहीं, आप कुछ भी समझाते रहिए। तो ऐसे लोगों को तो जिसे कहा जाए कि अल्लाह भी नहीं समझा सका, अल्लाह का रसूल भी नहीं समझा सका और ना उनसे मनवा सका, तो बहरहाल हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। तो पहले से इंसान के शैतान जो होता है वो शैतान किसी दूसरी चीज को जरिया नहीं बनाता इंसान को बहकाने के लिए, बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए कोई और जरिया नहीं बनाता, बल्कि इसी दीन को जरिया बनाता। उसके भी साथ देखा भाई आप ये कहें कि शैतान जो है वो यहाँ भी सब अल्लाह सुबह की सब चीजें काम है, बल्कि है ही नहीं कि उसको एक मैखाने और शराब खाने में जाने की क्या जरूरत है। क्यों? इसलिए वहां बैठे सब लोग धर्म में जा रहे हैं, पीढ़ी के जा रहे हैं, जिसको हेडर है ये पीछे बाहर जाने की क्या जरूरत है, सभी ड्राइवर हुए हैं, तो उसको वहां जाने की जरूरत है। बहुत रास खा रहा है, बहुत सी जगह है, मुझसे तो नहीं है, वो पहले पहले दिया जाते हैं कि इसको बैठ के मिलना पहले जाए हो जाए, तो उसको ये चीजों कुछ कर रहे हैं। बहुत दिया दीप का करता है, और दीप का करता है मस्जिद का है, वो बाप को दीप को या दीप से दीन को रखा उसके जरिए से वो के जरिए से है, उसके लिए तुमको या दीन को बनाना, दीन को जरिए से बनाना, किस जैसे भाई दीन में कुछ नहीं आई, चार तरह का इंसान अच्छा पढ़ लिया था, दूसरा गड़बड़ नहीं, अब उसके बाप पे उसका जुड़ा हुआ है क्या कि ये चीज पूछो क्यों है, अल्लाह ने एक नाम क्यों नहीं है, चलो साइंस दे दिया, कोई नाम क्यों है, दूसरे को नहीं क्यों है, ये क्यों है। अब आप अपने अपने गाड़ी वाला ये नमाज रखी है, समझ नहीं आता। अच्छा आप हैं, आप कैसे पूछे आप नमाज रखता, ये नमाज 2 रकात सुबह क्यों है, ये 3 रकात क्यों है, ये उसे 30 क्यों है, लोग किसी बता दो तो बेचारे थोड़े हो रहा है परिवार करवा दो, ये सवाल इसका ये क्या आप कहने क्या रखा है, अल्लाह ने क्या से इंसान डाल क्या है, तो वो सच्ची मसला हो उसी दिन को चलते से इंसान को मालूम होता है। एक साथ रहे हैं मुल्ला सिंह पता नहीं आती सवाल मतलब बहुत से लगे हैं, बहुत से लगे हैं, तो ना क्या समझा कि ये क्यों